Hello, students. I hope you all are doing well. I warmly welcome to my channel Short Study. Now, before we proceed, I would like to convey a short message to all of you. This is an educational channel. In this channel, you will find topics related to geography, history, political science, civics, EVS, English, Hindi. In this channel, you will get quality education and correct knowledge. When quality education and correct knowledge combine, it gives positive light in your life that leads to bright future. Now, with the hope of great and bright future, let's move on to our very first topic of this channel, that is geography. So students, we will start our first topic, that is geography as a subject. In this topic, we will understand the meaning of geography as a subject in details, and later we will understand why do we need to study geography. Okay, because before we start understanding each and every topic of subject, it is very important to understand the subject first. That's why we have started this geography subject by itself. So first question we have, what is geography as a subject? Geography is a Greek word first coined by Greek philosopher Eratosthenes. In geography, geo means earth and graphy means description or study. In simple term, geography means study of earth. So, geography सब्जेक्ट का मतलब होता है अर्थ की स्टडी करना, अर्थ के विषय में पढ़ना. जो भी चीज़ अर्थ से कनेक्ट करती है, अर्थ से जुड़ी हुई है, उन सभी विषयों के बारे में पढ़ना और उन विषयों का अर्थ से क्या लेना देना है, उन विषयों के बारे में भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा से आया हुआ एक शब्द है. ग्रीक यानी यूनानी भाषा से आया हुआ एक शब्द है, जिसको सबसे पहले ग्रीक के एक फिलोसोफर इरेटोस्थेनिस ने जिसका परिचय दिया था. इरेटोस्थेनिस को ज्योग्राफी फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है. ठीक है, तो ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलके बना है. पहला है जियो, जिसका अर्थ है अर्थ, और ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन. सो जियोग्राफी टुगेदर मेक्स डिस्क्रिप्शन और स्टडी ऑफ द अर्थ. ठीक है. अब on earth we have two important components: physical feature, it contains mountain, plains, river, oceans, etc. Next we have human being, social and cultural variation in human life on earth. So हमारी अर्थ में दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. अब कंपोनेंट मतलब दो, हमारी धरती के दो ज़रूरी भाग है, यानी दो ज़रूरी हिस्से हैं. ठीक है, ये दो हिस्सों की वजह से ही हमारी अर्थ बाकी प्लैनेट से अलग लगती है. वो कौन से दो हिस्से हैं देखते हैं हम. सो पहला है फिजिकल फीचर. फिजिकल फीचर्स को हम नेचुरल फीचर्स भी कहते हैं. ये जितने भी फिजिकल फीचर्स हमारी अर्थ पर मौजूद है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं. इन्हें हम इंसानों ने नहीं बनाया है. ये नेचुरल फीचर्स हमारी अर्थ के ऊपर अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरीके से मौजूद है. जैसे अर्थ के कुछ हिस्सों में माउंटेन्स मौजूद है, कुछ हिस्से प्लेन्स है, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे डेज़र्ट ही डेज़र्ट है, कुछ हिस्सों में कोस्टल एरियाज़ है. साथ ही साथ अर्थ का काफ़ी हिस्सा समुंदर से यानी ओशन से, सीज से भरा हुआ है. कहीं पे रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, और भी
कई सारे ऐसे नेचुरल फीचर्स हैं जो हमारी अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स सोशल एंड कल्चर वेरिएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि जो दूसरा जो ज़रूरी हिस्सा है हमारी अर्थ का वो है ह्यूमन बींग्स यानी इंसान। इंसान का रहन सहन, उसके एक्टिविटीज़, वो सब हमारी अर्थ के ऊपर प्रभाव डालते हैं और साथ ही साथ अर्थ का भी प्रभाव हम ह्यूमंस की लाइफ में पड़ता है। ठीक है, तो ये दो ज़रूरी हिस्से हैं हमारे अर्थ के। इन दो हिस्सों की वजह से ही हमारी अर्थ में जान है, इसी वजह से अर्थ बाकी प्लैनेट से अलग दिखती है। आगे बढ़ते हैं। These two components are related to each other and we also study this relationship in geography subject. We can see this relation in reality. For example, we go to different states, country, we see variation in social and cultural form and also see variation in physical features of different states and country. We see these changes through customs, rituals, food habits, dress-ups, etc. In short, physical features and human beings are interlinked. Yes, students, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये दो ज़रूरी जो हिस्से हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ हैं, जो कि फिजिकल फीचर्स एंड ह्यूमन बींग्स हैं, ये दोनों इंटरलिंक्ड करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये हम देख भी सकते हैं, क्योंकि जैसा लैंड फीचर होगा, जैसे जहाँ पे इंसान रहते हैं उसके आसपास का जैसा लैंड फीचर होगा, वैसे ही इंसान की आदतें, उसके खाने पीने का ढंग, उसके कपड़े पहनने का ढंग, सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वह अपनी लाइफ को वैसा ही बना लेते हैं जैसे कि उसके आसपास का नेचुरल फीचर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि जो पहाड़, जो माउंटेन्स की तरफ लोग रहते हैं और जो प्लेन एरिया की तरफ लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, उनके घर बनाने का तरीका, उनके कपड़े जो पहनते हैं, वह खाने पीने के जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें अलग होती हैं। क्यों अलग होती हैं? क्योंकि वो उनका जो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का नेचुरल फीचर अलग है एक दूसरे से। ठीक है, अब जैसे पहाड़ों पे ठंड ज़्यादा होती है तो पहाड़ के लोग ज़्यादातर गर्म कपड़े पहनते हैं। प्लेन एरिया में बहुत जल्दी सीज़न बदलता है, लेकिन पहाड़ों की तरफ बहुत जल्दी सीज़न नहीं बदलता है, वहाँ पे ज़्यादातर ठंड ही रहती है, गर्मियाँ बहुत कम दिनों के लिए रहती है। अब उसी के अनुसार वो खाना पीना भी खाते हैं, उसी के अनुसार वो कपड़े भी पहनते हैं, उसी के अनुसार उनके कल्चर और रिचुअल्स भी होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो फिज़िकल फीचर्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, और ये जो वेरिएशन है कि इंसानों का रहन सहन, खान पान, सोशल और कल्चर जो वेरिएशन है, ये अलग अलग जगहों में अलग अलग है। मतलब पहाड़ी इलाकों में अलग है, प्लेन एरियाज़ में अलग है, डेज़र्ट एरियाज़ में अलग है। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इंसानों के रहने का ढंग है, तरीका है। साथ ही साथ ये जो फिज़िकल फीचर्स हैं, ये पूरी अर्थ में एक समान नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पूरा अर्थ ही पूरा प्लेन एरिया से ही कवर्ड अप है, या माउंटेन एरिया से ही कवर्ड अप है, या पूरा अर्थ ही ओशन से ही फिल्ड है, कोई लैंड एरिया ही नहीं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही फिजिकल फीचर्स से कवर अप है अर्थ। जैसे हम ह्यूमंस की सोशल एंड कल्चर वेरिएशन देख पाते हैं, उसी तरह हम फिजिकल फीचर्स में भी वेरिएशन देख पाते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। सो वेरिएशन दोनों में ही है और दोनों ही इंटरलिंक करते हैं।